ایسی جگہوں پہ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا کہہ گیا تھا؟ دیکھو تو پاؤ، سوچو تو جانو۔ غور کرنے لگا اور یہی غور کرتے کرتے اچانک پچھلے دن کی باتیں یاد آ گئیں اور اچھل پڑا۔ ماموں ریاض تھانے میں ملے تھے اور وہ لوگ انہیں لے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ علم میں آیا تھا وہ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ بالکل یوں لگتا تھا جیسے تمام واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں۔ میں خود بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ کیا بات تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا اور پھر گردن ہلا کر کروٹ بدل لی۔ ماموں ریاض بیچارے، اگر جو کچھ میرے ذہن میں آیا سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت سے نکل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ذہن میں کیسے آیا؟ ٹھنڈی ہواؤں نے آنکھوں کے پپوٹے بوجھل کر دیے تھے اور ہلکا سا سرور ذہن پر طاری ہو گیا تھا، لیکن سوچوں کے دائرے محدود نہیں ہوئے تھے۔ سوچوں کا عظیم سرمایہ محفوظ تھا۔ دماغ بوجھل ضرور ہو گیا تھا لیکن حاضر تھا۔ ماموں ریاض کے دل میں ضرور ہوگا کہ میرے لیے کچھ کریں، ہر چند کہ میں نے انہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ وہ بھی دیوانے ہو گئے ہوں گے۔ اگر بڑے افسر نہ آ جاتے تو ہو سکتا ہے جو کچھ میرے ذہن میں آیا اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گھر جا کر میرے بارے میں امیوں اور ابو کو بتایا ہو۔ کیا گزری ہوگی ان پر؟ ماموں ریاض۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، بوسیدہ کیواڑ جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، پلاسٹر کی دیواریں تھیں، دروازے کی دوسری طرف چھوٹا سا صحن، ایک برآمدہ جس میں تخت پڑا ہوا تھا، ایک کمرے میں بائیں سمت غسل خانہ اور بیت الخلا، دوسری طرف باورچی خانہ۔ ابو اور امی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں، آنکھیں بے نور تھیں، وہ بار بار پلکیں جھپکا رہی تھیں۔ ابو اچھل پڑے، انہوں نے سرگوشی کے عالم میں کہا، ریاض آ گیا۔ آ گیا؟ امی اچھل پڑی۔ ہاں ریاض بیٹے، امی کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں باجی، میں آ گیا۔ کہاں ہے؟ میرے پاس آ ریاض، میرے پاس آ۔ ماموں ریاض امی کے سینے سے جا لگے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ مارا تو نہیں تجھے؟ انہوں نے تجھے مارا تو نہیں؟ امی ماموں ریاض کو ٹٹولتی ہوئی بولی۔ ارے نہیں باجی، کوئی میں ڈاکو تھا، چور تھا، مارتے کیسے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ کچھ کھایا ہے تو نے؟ پیٹ بھر کر کھایا ہے باجی، اطمینان سے بیٹھو۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ سنیے، روٹیاں لے آئیے بازار سے، میں چائے بنا لیتی ہوں، روٹیاں لے آئیے۔ باجی میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور کھائیں گے؟ ریاض ہم نے نہیں کھایا، کل سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اوہو، میں لاتا ہوں، آپ بیٹھیے بھائی جان، میں لاتا ہوں۔ ماموں ریاض بولے۔ نہیں ریاض، تو نہ جا بیٹے، کہیں پولیس والے دوبارہ نہ پکڑ لیں، تو نہ جا ریاض۔ باجی پولیس کیوں پکڑے گی مجھے؟ آخر اسے دھوکا ہوا تھا، بعد میں سب نے معافی مانگی ہے۔ یہ دیکھیے نجم الحسن صاحب نے مجھے 500 روپے بھی دیے ہیں ہر جانے کے طور پہ۔ تجھ پر اب الزام تو نہیں ہے؟ نہیں باجی، فیض الحسن بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے، مگر وہ برا لڑکا نہیں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو رقمیں غائب کی ہیں ان کے الزام میں اس کے باپ نے مجھے گرفتار کروایا ہے تو وہ باپ کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات بتا دی۔ نجم الحسن خود تھانے گئے، ان کی بیوی اور فیض بھی ساتھ میں تھا۔ انہوں نے مجھے چھڑوا لیا، بڑی معافیاں مانگی، انہوں نے 200 روپے تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بھائی جان میں کھانا لے آتا ہوں، روٹیاں لے آ، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں باجی، مرغی کا سالن لاؤں گا، محنت کے پیسے ہیں، اور یہ آپ کو چائے بنانے کی کیا سوجی؟ کیا آپ پھر چولہا جلانے لگی ہیں؟ نہیں مانتی، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ ابو بولے۔ خدا کے لیے باجی چولہے کے پاس نہ جایا کریں، پورا دوپٹہ جلا لیا تھا، اللہ نے بچایا ہے، اب بار بار تو ایسا تھوڑی ہوگا۔ جا کھانا لے آ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں دروازے سے نکل گئے تھے۔ پھر میں نے ان سب کو دسترخوان پر دیکھا۔ امی ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا جل رہی تھی۔ اب یہ پنکھا رکھ دیں اور کھانا کھائیں، ابو بولے۔ افو، کھاؤ تم لوگ، مکھیاں بیٹھیں گی کھانے پر۔ ایک مکھی بھی نہیں ہے، رکھیے پنکھا، کھانا کھائیے، ماموں بولے۔ ذرا دیکھیے بھنی ہوئی مرغی کیا مزہ دے رہی ہے۔ کھا لوں گی نا، تم لوگ کھاؤ۔ امی بے اختیار رو پڑی۔ ابو اور ماموں کے ہاتھ رک گئے۔ ماموں نے کہا، باجی کھا لوں گی میں، میرے پیچھے مت پڑو میرے پیچھے، پتہ نہیں میرے بچے۔ امی بلک بلک کر رو پڑی، ابو بھی سسکتے رہے۔ ماموں عجیب سی کیفیت کے شکار ہو گئے تھے، وہ ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رک گئے تم لوگ،
ना खाओ तो मुझे मुर्दा देखो। खाओ, मैं कहती हूँ खाओ। अम्मी उनके हाथ टटोलने लगी। मामू रियाज ने कहा, आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ भाईजान। अब्बू ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें देखा। आपके और बाजी के सिवा दुनिया में मेरा और कौन है? आप दोनों की कसम खाकर एक बात कह रहा हूँ, ये रिस्क है मेरे हाथ में। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर अब सोच रहा हूँ कि जो कहना है बाजी के सामने ही कह दूं। बात क्या है? अब्बू ने आंखें खुश करके मामू रियाज को देखा। मसूद जिंदा है, खैरियत से है, बस जरा कमजोर हो गया है, हुलिया बदल रखा है, दाढ़ी छोड़ दी है। कहता है कि कुछ मुश्किलात है जिन पर काबू पा लिया तो वो वापस घर आ जाएगा, उसकी फिक्र ना की जाए। क्या? अब्बू उछलकर खड़े हो गए। आपकी और बाजी की कसम झूठ नहीं बोल रहा, वो जिंदा सलामत है और उसे महमूद के बारे में भी मालूम है। हमारा महमूद भी खुदा के फजल से खैरियत से है और मुल्क से बाहर चला गया है। अगर उसे हमारा पता मालूम होता तो यकीनन वो अब तक हमसे राब्ता कर चुका होता। रियाज, तुझे अल्लाह का वास्ता, कलेजा निकाल लिया है तूने। हाय, तूने कलेजा निकाल लिया है। अरे तुझे खुदा का वास्ता बता तो दे, बता दे कि दिल रख रहा है या सच बोल रहा है। अम्मी ने झुककर मामू रियाज के पांव पकड़ लिए। मैंने आप दोनों की कस्में खाई हैं बाजी, और भी कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। कहाँ मिला वो? तेरे साथ घर नहीं आया? थाने के लॉकअप में मिला था। हैं? अब्बू के हलक से रुंधी हुई आवाज निकली। अल्लाह ना चाहा तो वापस आ जाएगा। नजमुल हसन कल अपने थानेदार दोस्त से मिलकर उसे रिहा करा लेंगे। मुझे ले चल रियाज, मुझे ले चल। अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ मैं। मैं उसे छूना चाहती हूँ। अम्मी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। आपने इस तरह दिल दुखाया है बाजी, वरना मैं अभी आपको कुछ ना बताता। मुझे अपनी ये खामोशी जुर्म महसूस हुई थी। हर कीमत पर आपको इंतजार करना होगा। भाईजान, आप गौर करें, इस पर कत्ल का इल्जाम है कि जाने किस तरह उसने खुद को छुपाया हुआ है। पुलिस की याददाश्त इतनी खराब नहीं होती। सब यकजा हो गए तो कहीं थानेदार को माजी याद ना आ जाए और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हैं? अम्मी के मुंह से निकला। हाँ बाजी, सब्र करना होगा आपको। अल्लाह ने आपको इन दोनों की जिंदगी की खबर दी है। एक दिन हमसे भी आ मिलेंगे। कल नहीं? अम्मी ने हंसते से पूछा। सब कुछ अल्लाह जानता है, वही सब कुछ। एकदम सिलसिला टूट गया। कोई पाँव पकड़ के चिल्ला रहा था। फिर एक आवाज सुनाई दी, बाबा जी, बाबा साहब। मैं चौंक पड़ा। चंद अफराद खड़े हुए थे, शक्लें जानी पहचानी सी थी। उन बुजुर्ग को मैंने फौरन पहचान लिया जिसका सामान उठाने के 2 रुपए मिले थे मुझे। मैं जल्दी से उठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। बाबा साहब, उठिए, उठिए बाबा साहब। कोई गलती हो गई मुझसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। गलती हमसे हुई है बाबा साहब, आपको पहचान न सके। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। अल्लाह के नाम पे आप हमारी मदद करें बाबा साहब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप लोग यकीन करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया। वही खानदान था जो रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। अब मैंने सबको पहचान लिया था। वो सब मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, आमिर मेरा पोता है। मेरे बेटे का एक ही बेटा है, दूसरी बेटी है। ये है वो नसीमा। आमिर स्कूल में पढ़ता था। शौक खिलाड़ी मगर ज़हीन था। कभी कभी बच्चों के साथ स्कूल से आवारागर्दी करने निकल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उसके स्कूल से काफी फासले पर एक जगह करबला के नाम से मशहूर है। वहाँ ताज़िए दफन किए जाते हैं। नजदीकी कब्रिस्तान भी है। आसपास खेत बिखरे हुए हैं। वहीं खेलने चला गया था। वापस आया तो चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें चमक रही थीं। रात को बुखार आया, वो हिज़ियान बकता रहा। उसके बाद मियाँ साहब हम ज़ेरे अताब हैं। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी तफसील तवील है। इस पर साया हो गया है बाबा साहब। न जाने क्या क्या कर चुके हैं हम, मगर कुछ नहीं हो सका। बाबा साहब, उस वक्त भी उस पर जुनून तारी था जब वो भागकर बाहर आया था। आपको देखकर सहम गया। उस वक्त से अंदर घुसा हुआ है, जबकि अंदर रहता ही नहीं था। अब कहता है कि बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर वो है। वो कौन? मैंने पूछा। आपसे डर रहा है। मुझसे? हाँ, मुझसे क्यों? अल्लाह जानता है। मैं हंसने लगा। अजीब हैं आप लोग। आपको पता है कि मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके पेट भरता हूँ। चाचा मियाँ, आपको तो खुद इल्म है कि मैंने आपका सामान उठाकर सुबह का नाश्ता किया था। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं। देखिए बाबा साहब, हम भला आपसे कुछ कहने की कहाँ अहलियत रखते हैं। इतना जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने अपनी कोई अमानत आपको सौंपी है,
तो उसे दूसरों की भलाई के लिए जरूर इस्तेमाल करें। आपकी सरबुलंदी में इजाफा होगा। हम परेशान हाल लोग हैं, न जाने कहां कहां मारे मारे फिर रहे हैं। वो मासूम बच्चा है, कुल 11 साल उम्र है उसकी। पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। माँ रो रो कर मर जाएगी उसकी। सूली पे लटके हुए हैं हम। अल्लाह के नाम पर हमारी मदद करें। बुजुर्ग रोने लगे। मगर मोहतरम, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं खुद जिंदगी का सताया हुआ हूँ। आपको जरूर मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। मगर मोहतरम, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं खुद जिंदगी का सताया हुआ हूँ। आपको जरूर मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। वो सिर्फ आपसे खौफजदा है। कहता है बाहर नहीं जाएगा। बाहर कंबल वाले बाबा हैं और कंबल आप ही के पास है। कंबल? मेरे पूरे वजूद में बम सा फटा। कंबल? मैंने फटी फटी आंखों से इस कंबल को देखा जिसे अभी सिरहाने रखे सो रहा था। ये अतिया उन्हीं 2 बुजुर्गों में से एक ने मुझे दिया था, मगर उस वक्त मेरी अंधी आंखों ने इसे नहीं पहचाना था। अब तक नहीं पहचाना था। ये तो वही कंबल था जो एक बार पहले भी मुझे मिल चुका था। मैं भला इस कंबल को भूल सकता था? जब ये मिला था तो मुझे उरूज मिला था और फिर मैंने इसे खो दिया था। ये वही कंबल था, 100% वही था। दिमाग में शीशे से टूटने लगे, छनाके होने लगे। वो दोनों बुजुर्ग याद आए जिनमें से एक ने मुझे कंबल दिया था। शक्लें याद नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ याद था। कंबल ओढ़ा था और इसके बाद अम्मी और अब्बू को देखा था। मामू रियाज के बारे में आगे का सारा हाल देखा था। कोई तसव्वुर इतनी जामे शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता था। मैंने तो वो सब कुछ देखा था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बाबा साहब, बुजुर्ग की आवाज ने मुझे चौंका दिया। जी, मैं वो खुदा के लिए बाबा साहब, खुदा के लिए। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। खुदा के लिए बाबा साहब। बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैं तड़प उठा। ऐसा ना करें मोहतरम, खुदा के लिए ऐसा करके मुझे गुनाहगार ना करें। हमारी मदद करें। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद हाजिरी दूंगा। बहुत बेहतर, हम इंतजार करेंगे। आप जाइए, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अगर आपका काम ना कर सका तो माजरत करने आ जाऊंगा, मैंने कहा। और वो भी सब उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए वापस चले गए। मैंने दीवाना वार आगे बढ़कर कंबल उठाया और उसे सीने से लगा लिया। सुकून का एक समंदर सीने में उतर गया था। देर तक इस सुकून से बहरावर होता रहा। शाम के साए झलक रहे थे। असर की नमाज का वक्त हो गया। पानी तलाश करके वुजू किया, नमाज पढ़ी। उसी दरख्त के नीचे बसेरा कर लिया था। रात हो गई। ईशा की नमाज से फारिग हुआ था कि खाना आ गया। बाबा साहब, लंगर ले लीजिए, साहिब मजार के नाम का है। इनकार न कर सका। थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद कंबल ओढ़ लिया। दिल में कहा, मुझे इस नेमत से सरफराज करने वालों, मुझसे ज्यादा तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कोरे बीना हूँ। मेरी नजर महदूद है, मेरी अकल महदूद है। जो मनसब मुझे दिया गया था, अता किया था, उससे ओहदा बरा होने के लिए रहनुमाई दरकार है। मेरी अक्ल नाकिस सही फैसले करने से कासिर है। मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई अता हो। मुझे रहनुमाई दरकार है, मुझे रहनुमाई चाहिए। आंखों से आंसू रवा हो गए। किसी ने जोर से धकेल कर कहा, बड़ा फैल कर सो रहा है, सरक जा, जगह दे। मैं लुढ़क गया था, जल्दी से उठ बैठा। ये भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बूढ़ा आदमी था। जमीन अल्लाह की है, इस पर सबका हक है। क्यों नहीं, आप आराम से लेट जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी इत्मीनान से लेट गया। कुछ देर खामोशी से गुजर गई। फिर उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और बोला, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। जी। मैंने उसका पाँव उठाकर गोद में रख लिया और उसे दबाने लगा। दफअतन उसने बड़ी जोर से दूसरा पाँव मेरे सीने पे दे मारा और मैं बेख्तियार लुढ़क कर दूर जा गिरा। हाथों में कांटे उगे हुए हैं। आहिस्ता नहीं दबा सकता, ताकत आजमा रहा है मेरे पैरों पर। ओह नहीं बाबा साहब, माफ कर दीजिएगा, अब मैं आहिस्ता दबाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठकर दोबारा उसके पास आ बैठा। एहतराम से दोबारा इसका पाँव लेकर गोद में रखा और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। हाँ, अब ठीक है। उसने आंखें बंद कर ली। कोई 1 घंटा गुजर गया तो उसने करवट बदलकर दूसरा पाँव मेरी गोद में रख दिया। मैं दूसरा पाँव दबाने लगा। काफी देर गुजर गई। अचानक वो बोला, कातिल बहुत हैं, कुछ ज्यादा खतरनाक, कुछ कम। दुश्मन के वार करने से पहले उस पर वार कर दो, उसे मार डालो। दुश्मन नंबर 1 गुरूर है, खुद पसंदी है, तुम्हारे बदन का लिबास, तुम्हारी बीनाई, तुम्हारी सोच और सबसे बढ़कर
तुम्हारी जिंदगी अपनी नहीं है, फिर किस चीज पर तू हक जताते हो? बेवकूफी है ना? क्यों है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। सब कुछ कर्ज है, उधार है, अदायगी जरूरी है। बचा कुचा अपना होता है, दूसरे के माल पर क्या इतराना? क्यों, है कि नहीं? ठीक है बाबा साहब, पूछ लेना, अच्छा होता है। समझ में ना आए तो पूछ लो। किससे बाबा साहब? बताने वाला अंदर होता है, पूछोगे जवाब मिलेगा। भटकने की जरूरत ही क्या है, मगर करने से पहले पूछो। जी बाबा साहब, खुद गर्जी हमेशा नुकसान देती है। पहले दूसरों के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में। जज्बात संभालने पड़ते हैं, वरना खेल बिगड़ जाता है। क्या समझे? और कुछ पूछना है? आपने जितना बताया है इतना तो समझ लिया है बाबा साहब, इतना काफी है। जरूरत पड़े तो और पूछ लेना। मैं नाबीना हूँ बाबा साहब, कुछ नहीं जानता। सच्चाई से सब कुछ करना चाहता हूँ, मगर नावाकफियत का शिकार हो जाता हूँ। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा। चेहरा ढक लेना, दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस काफी है। बूढ़े शख्स ने पांव समेट लिए। और दबाऊं बाबा साहब? नहीं, चलता हूँ, बूढ़े ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रहा। उसे चंद कदम आगे बढ़ाए और फिर एक और दरख्त की आड़ में गुम हो गया। दिल बुरी तरह कांप रहा था। रहनुमाई मिली थी, इनाम अता हुआ था, हिदायत की गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर सोच में डूब गया। सारी बातों को याद करके दिल में उतारता रहा था। फिर वो लोग याद आ गए जिनसे वादा किया था। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लेटकर कंबल चेहरे पर डाल लिया। जहन में उनका तस्वुर किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो सब निगाहों के सामने आ गए। बुजुर्ग, उनका बेटा, बहू, लड़की और वो बच्चा। जुबान बाहर लटकी हुई थी, आंखों में दहशत रक्सा थी। नौजवान लड़की ने आंखें बंद की हुई थीं और खौफ से कांप रही थी। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हसद भरी नजरों से बच्चे को देख रही थी। उसका शौहर सर पकड़े बैठा हुआ था और वही बुजुर्ग तस्बीह हाथों में लिए कुछ पढ़ रहे थे। दफातन लड़के की जुबान लंबी होने लगी। सुर्ख जुबान किसी सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी लंबाई कोई 4 गज होगी और फिर अचानक उसने उस बुजुर्ग के हाथों में दबी तस्बीह को लपक लिया। नौजवान लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले जाओ, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा। मुझे अपनी आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। मुस्तादी से उठ खड़ा हुआ, कंबल तह करके शानों पर रखा और तेज तेज कदमों से इसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाजा बजाया। उन्हीं बुजुर्ग ने दरवाजा खोला था। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। आ सकता हूँ? आ जाइए। बुजुर्ग दरवाजे से हट गए। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा था, उसकी जुबान फौरन अंदर चली गई थी। वो उठकर दीवार से जा लगा। वो मुझे खौफजदा नजरों से देख रहा था और शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा नहीं होगा। एक गिलास पानी दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी हुई सुराही की तरफ बढ़ गए। तुम सुन रहे हो, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़की ने भारी आवाज में कहा। यहाँ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पे बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी और उसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियाँ, पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज पेश की जाए तो उसे मोहब्बत ही से कबूल करना चाहिए। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें कोई फायदा ना होगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह के बंदे हो के अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी तो बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो, वरना ये पानी तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा और तुम समझते हो कि ये गुनाह सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा। अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। जरा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेल रहे थे, उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दिए और अच्छा खासा जख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ूंगा इसे? इतने ही जख्म ना लगा दूं इसे तो मेरा भी नाम नहीं।